Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and today we are going to start the unsolved practicals of the revenue chapter from Sandeep Garg, okay? Class 11th, microeconomics, right? So let's first take the screenshot of the questions. Those who don't have the book, you can practice or you can take it from here. From 9 to 10, 11, and then 12. Then you have this. You can zoom it afterwards, okay? Total 21 questions are here. Now let's start. Okay, but before that, let's whenever I start a numerical, you can say the part. Okay, I always just give you the first here. That is the formulas, right? So I'm just going to write the formulas here first. This is the chapter revenue. Sweet. Revenue, and the name of the book is Sandeep Garg. Okay, I always mention for new students also, for new learners also. Okay, first the formulas are that are going to be applied for these unsolved practicals. First of all, we need to calculate total revenue. As we know that price into quantity, you will get total revenue, or total revenue is equals to summation of marginal revenue. That is okay. जब आप इसको practically करेंगे, then you will come to know that how is going to be calculated. बहुत आसान सा ही है. Then AR, that is average revenue, या हम इसको हम price भी कह सकते हैं. ये हमने पढ़ा था, ठीक है. Is equals to टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स के हैं या क्वांटिटी के हैं. ओके, क्वांटिटी बोलो और यूनिट्स बोलो, जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में. ओके, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल अप्लाई इट हियर. देन थर्ड है आपका एमआर, that is marginal revenue. We have already studied everything in theory. Now we're going to start and apply in the practicals. Okay, then MR is equals to TRN minus TRN-1, यानी कि नीचे से जो हम लोग करते हैं ना, ऊपर वाले को माइनस. अब तो आपको ये याद आ गया होगा ये वाला, ठीक है. So these formulas are going to be applied. Now let's start taking the screenshot. Now let's start the questions. Okay, the unsolved practicals, I have given you already the screenshot. Now you can just look from there, okay, and then start solving the question. Very simple questions. First of all, in the first question here, question number 1, it states calculate TR, AR and MR. So you have the formulas. Now you can easily apply. TR का formula क्या हो जाएगा? Price into quantity, the first formula. Then second, it states to calculate AR, okay? So AR is equals to TR divided by quantity. We know it very well. And third is MR. MR is equals to TRN minus TRN-1. Got it here? Now I'll just put the values of the table, okay? So the table here states the units sold. Units के हैं और हम quantity के हैं, ठीक है, एक ही बात है. So units are given here 1, 2, 3, 4. Okay. So you are going to solve it like that only. आपको भी इसी तरह solve करना है. Units हैं. Then price is given. Okay, price is how much? 5432. 5432. इस तरह क्वेश्चंस में आपको खुद से ये करना पड़ता है, राइट? टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. लाइंस मुझसे कभी स्ट्रेट नहीं बनती हैं, सो यू हैव टू बेयर दैट. ये पुराने स्टूडेंट्स को मेरे सब पता है. And I even don't want to use the lines from there also. ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ. I'm writing the answers with the green. Okay. Now here we know the formula. Price into quantity हम फिर से लिख देते हैं. Then TR upon Q and TRN minus TRN-1. Okay, so these are the formulas. ये मैंने पहले से लिख दिया और आप इसको प्लीज जरूर मेंशन करिएगा, राइट? Now 5 1s are 5, 4 2s are 8, 3 3s are
4 2 सा 8. सो सिंपल, AR डिवाइड कर दोगे, TR डिवाइड बाई क्वांटिटी, यहाँ पे आ गया 5, then 4, then 3 and then 2. एंड मार्जिनल रेवेन्यू नीचे से ऊपर वाले को TR को माइनस करना है, तो ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो ये 5 एज इट इज यहाँ पे आ गया. 8 minus 5 you will get 3, 9 minus 8 you will get 1. और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, बाद में आपका नेगेटिव भी हो जाता है. ओके, सो ये आ गया आपका 1. So this is your answer. Okay, please take the screenshot. Next we will do the next question. Question number 2. You have the screenshot. Try to do it by yourself. Question number 2 में क्या है, determine the value of TR, AR, MR. Same चीज है, तो TR, AR and MR. ठीक है, you will write the formula by yourself now. So here you have the price and the quantity. Price and quantity 195 price है, 195, 90, 85 and then 80. Okay, and price क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5. Okay, now again the same thing, TR, AR and MR. Now please tell me in the comment section formulas क्या हैं please, ताकि मुझे भी समझ में आए कि students are getting the point or not. You will use the scale. I'm just doing it roughly. Okay, नीटली वर्क करेंगे, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए ताकि आपके मार्क्स कहीं से भी मिस ना. एंड ऑलवेज डू राइट द फॉर्मुलाज. फॉर्मुलाज आपको पता है, मैं सिर्फ ऊपर मेंशन कर देती हूँ. TR इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी. यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. AR इज इक्वल टू TR डिवाइडेड बाय Q and MR is equal to TRN minus 1. Okay, know this thing. Now let's start calculating the 100 into 100, 1, then 190, this is 95 now, then 270. Please cross check the calculation also. Then 400, then TR आपका AR क्या आ जाएगा, TR डिवाइड बाई Q. तो जब TR को हम डिवाइड करेंगे Q से, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम याद रखिएगा, ठीक है. then 190 डिवाइडेड बाई 2 you will get 95, then 90, then 85. Please calculate by yourself also, cross check करना जरूरी है. And MR is TRN minus 1. तो ऊपर का तो कुछ भी नहीं है, so we will write like this. Now 95 minus 100, sorry 190, यहाँ से नहीं है, sorry, मैंने P में लिख दिया, P में नहीं आएगा ये. ये आपका आएगा TR पे, राइट. तो TR में क्या है, 100 का 100 हो गया, 190 माइनस 100 90, देन 270, तो ये आपका आ गया 80. बस नीचे वाले से ऊपर वाले नंबर को माइनस करते जाना है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ MR. Okay, please take the screenshot. Let's do question number 3. Question number 3 में क्या है, again here compute TR, AR and MR. TR, AR, MR. ठीक है, यही आपको कैलकुलेट करना है. तो क्वांटिटी गिवन होगा, देन प्राइस है, देन यू नीड टू कैलकुलेट TR, AR एंड MR. ओके, तो क्या है इसमें, क्वांटिटी है 3 4 5, कभी भी है तब तो आपको समझ में आ गया होगा ना. इसका क्या है, प्राइस इज 1098. मिसिंग वैल्यूज भी इसमें कर देंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यू नो द फॉर्मूला एंड देन यू कैन इजीली स्टार्ट इट बाय योरसेल्फ. And if these questions help you in solving the unsolved practicals and getting each and every point clear, concepts clarity, then please do subscribe my channel Economics at Ease. Okay, it will further help you in class 12 also, as I have already uploaded and make a playlist, numericals, chapter wise solutions and everything. Okay, so this is a request for the all the class 11th students, that when you are going to class 12th, then each and every chapter is explained very well. Okay, for class 12th macroeconomics, and it's already uploaded. Okay, so you can take the help from that.
book Sandeep Kar. Remember that, okay? Now, TR is what? Price into quantity. AR is TR divided by Q, and MR is TRN minus TRN minus 1. Now remember one more thing, whenever you are solving the questions, you know the formula, but still your habit आपको ये बनानी, you have to write it somewhere. नोट्स में कहीं ना कहीं जरूर मेंशन करिए, टेबल में लिख दिए या अलग से फॉर्मूलाज आप हाईलाइट कर दिए इस तरह के, और फॉर्मूलाज क्या हैं आपके, इस तरह भी आप जरूर मेंशन करिए, क्योंकि ये हैबिट आपकी अगर बनी रहेगी ना तो लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। दूसरा, प्रेजेंटेशन में जरूरी है कि हाउ यू आर कैलकुलेटिंग, ओके, और इस पे भी मार्क्स मिलते हैं। तो ये शुरू से आप हैबिट बना के चलिए, ओके फाइन। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, यहाँ पे मेंशन कर दिया, so it will easy for the examiner to remember that this student knows very well, the concept clarity is there, right? Now question number 3 में हमने ये किया था, now we are going to just apply the formulas here. 10 into 3 30, 9 4s are 36 and 5 8s are 40. देन टी आर डिवाइडेड बाई क्यू, यानी कि ये वाला कॉलम, कॉलम इसमें जरूर से ध्यान रखना, जितने भी आपके ए आर एम आर वाले हैं और कॉस्ट वाले हैं, प्रोडक्शन वाले, टीपी वाले हैं ना, सब में कॉलम्स बहुत बनते हैं, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा। देन ए आर का कितना है, 10 9 एंड 8। प्लीज डू द कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ ऑल्सो। अच्छा देखो, एक चीज यहाँ पे मैं बताना भूल गई थी कि व्हेन क्वांटिटी स्टार्ट्स फ्रॉम 2, अभी जिससे पहले हमने क्वेश्चंस करे तो उसमें क्वांटिटी क्या थी, 1 से स्टार्ट हो रही थी, तो हम एज इट इज जो भी आपका जो है दैट इज टी आर होता था, वो हम एज इट इज कॉपी करके लिख देते थे एम आर की प्लेस पे, राइट? ठीक है, जो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस करे 2 क्वेश्चंस उसमें ये था, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, क्वांटिटी स्टार्ट्स विथ 3, ओके, तो हमने ऊपर की तो वैल्यू में पता ही नहीं है कि हमें क्या डिफरेंस समझ में आएगा, टी आर एन माइनस 1, सो वी डोंट नो द चेंज इन क्वांटिटी, सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट अ डैश हियर। हमेशा याद रखना, जब 1 से स्टार्ट होगी तो एम आर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टी आर आपका था 100, तो ये 100 ही आएगा, ठीक है, ये समझ लिए आप। जब भी 1 से क्वांटिटी स्टार्ट होगी तो आप सिंपल सा लॉजिक बस इसमें याद रखिएगा, बिकॉज इसमें तो कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब मान लीजिए चेंज यहाँ पे आपका आ रहा है 2 या 3 आ रहा है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 3 है, तो हम क्या करेंगे, एम आर, हमें ऊपर वाले की तो वैल्यूज कुछ पता ही नहीं है, कुछ हमें पता नहीं है ना यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट अ डैश, चाहे यहाँ पे आपकी 10 हो, चाहे यहाँ पे आपकी 9 हो, चाहे यहाँ पे आपकी 100 वैल्यू हो टी आर के कॉलम में, बट वी विल पुट अ डैश, ओके, पहले वाले में डैश, ये चीज याद रखना प्लीज, क्योंकि अगर आप एक वैल्यूज की गलत पुट करेंगे देन व्हाट हैपेंस, रेस्ट ऑफ द थिंग सब कुछ गलत हो जाएगा, मतलब ये पूरा कॉलम ही आपका गड़बड़ हो जाएगा फिर, राइट? तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। नाउ, तो पहले वाले में हमने एम आर डैश कर दिया, देन आप इसकी वैल्यू देखिए, 36 से 30 का डिफरेंस दैट इज 6, एंड 40 से 36 का डिफरेंस 4, ओके, आई होप इट्स क्वाइट क्लियर नाउ, टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, again given data, calculate TR, AR, MR, TR, AR, MR, okay, now price and unit sold को हो या क्वांटिटी को हो, बात एक है। 7 है देखो, 6 है, 5 4 3 2 1, उल्टा चल रहा है तो उल्टा ही हम लिखेंगे, हम अपने हिसाब से चेंजेस नहीं लाएंगे, राइट? जो मेंशन है जिस तरह हम वैसे ही करेंगे, अपना दिमाग जबरदस्ती नहीं लगाएंगे। देन प्राइस इज 10 20 30 40 50 60 70, 10 20 30 40 50 60 70. Now we need to find out TR, AR, and MR. We know the formulas also, right? लाइंस अगर मैं नहीं खींचती हूँ तो मुझे थोड़ा सा नंबरिंग में प्रॉब्लम होता है, और आपको भी थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होता होगा, इसलिए आई ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ द लाइन। क्वेश्चंस देखो इस चैप्टर के बहुत इजी हैं, टफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता था ना, टीवीसी भी अगर है और एमसी कैलकुलेट करना है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें बस यही 3 फॉर्मूलाज चलेंगे, ओके, तो आपको पता होना चाहिए, राइट? सो वी नो द फॉर्मूला, टी आर इज इक्वल्स टू प्राइस इंटू, सॉरी,
price into quantity, first formula. Second, AR is equals to PR divided by quantity. And third formula is MR is equals to TRN minus TRN minus 1. Okay. Now please start solving. Question number 4. तो पहला आपका 70, 120, 150, 160 सब मल्टीप्लाई करते जाना है. 150, 120 एंड देन 70. AR में भी क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. सो यू विल गेट 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. देखो ये तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं. एक चीज और हो सकती है कि वी नो डेट AR इज इक्वल्स टू प्राइस, है ना. AR इज इक्वल्स टू प्राइस हमने ये पढ़ा था ना. AR एंड प्राइस आपका सेम ही होता है. वो वाली चीज कंडीशन भी आप कर सकते हैं. सिंपली आप कैलकुलेट ना करिए, आपको पता है. आपने प्राइस को सीधे सीधे उठा के यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया. दैट कैन बी ऑल्सो डन हियर. ओके. नाउ नेक्स्ट सी व्हाट हियर. ये ज्यादा आपको आसान रहेगा, कैलकुलेशन आपकी कम हो जाएगी. अच्छा, मैंने अभी क्या बताया था? अगर क्वांटिटी 1 से नहीं स्टार्ट होती है तो हम पहले में क्या करेंगे? डैश कर देंगे. नाउ स्टार्ट डूइंग इट. 120 माइनस 70 होगा TRN माइनस 1 है, राइट. तो ये आपका आ गया 50. देन 150 माइनस 120, यू विल गेट 30. देन 10, देन माइनस 10, देन माइनस 30 एंड देन माइनस 50 एंड सो. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट. तो दो चीजें देखो समझ में आई ना. एक तो MR वाली समझ में आई कॉन्सेप्ट हो गया, और AR में ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. सीधे जो प्राइस लिखा है आप एज इट इज उसको कॉपी कर सकते हैं इन रेवेन्यू चैप्टर. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या मेंशन है. लेट्स सी. इसमें भी TR AR MR ही ज्यादातर पूछते ही है. तो ओके, TR AR एंड MR. नाउ यूनिट्स या क्वांटिटी आप कुछ भी कह लिए. मैं इसलिए हर चीज बार बार बता दूं, बच्चे कंफ्यूज ना हो कि मैम ये नहीं दिया था वो नहीं दिया था. एंड प्राइस. आज चलो इसमें ऐसे करके लिख देते हैं. तो यूनिट्स क्या है? 10, 9, 8, 7, 6, 5 एंड 4. एंड प्राइस इज व्हाट? 10, 20 to 70. 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70. Now you need to calculate TR, AR and MR. Okay, now we know the formulas. हर बार मैं फॉर्मूला इसी लिख रही हूँ ताकि आपको भी हैबिट रहे, राइट. प्राइस इनटू क्वांटिटी. AR is equals to TR divided by Q and MR is equals to TRN minus TRN-1. देखो इसमें क्या कर सकते हैं आप इसमें ये करिए कि पहले क्वेश्चन नंबर 5 में जो मैंने चीज बताई थी उसको सीधे सीधे अप्लाई करके देख लेते हैं. MR देखो यहाँ ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, पहले डैश रख दो. एक चीज सॉर्ट आउट हो गई कि अब हमें करना है. AR क्या करते हैं? प्राइस को सीधा कॉपी करके AR के कॉलम में लिख लो. तो एक कॉलम आपका बगैर किसी कुछ काम के, विदाउट एनी कैलकुलेशन, आपका ये पक्के हो गए मार्क्सिस में. आसान था ना ये. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, TR आप जैसे कैलकुलेट करते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो आप उसको लिखते चले जाइए. तो 100, 180. ज्यादा आसान था ना. जहां पे हमें कंफ्यूजन लगता है या हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, वो हमने एज इट इज उस चीज को सॉर्ट आउट कर दिया. राइट, प्लीज क्रॉस चेक द वैल्यूज ऑल्सो. ना MR में क्या है? TR का आपको करना है 180 माइनस 100, यू विल गेट 80.
देन ऐसे ही नीचे 240 से 180 माइनस करेंगे एंड सो ऑन 60 40 देन यू विल गेट 60 देन 300 में कुछ भी नहीं है तो ये 0 है एंड योर -20. ठीक है. आई होप इट्स क्वाइट क्लियर नाउ. प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. क्वेश्चन नंबर 6. ये देखो क्वेश्चंस में मैक्सिमम कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी आपके ज्यादा चीजें करा लूँ ताकि आपका कंप्लीट हो जाए पोर्शन. राइट. ना क्वेश्चन नंबर 6 में क्या मेंशन कर रहे हैं. ए आर एंड एम आर कैलकुलेट करना. देखो थोड़ा सा ये डिफरेंट है. ए आर और एम आर हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो ज्यादा कुछ नहीं. टी आर इसमें गिवन है तो और थोड़ा आसानी हो गया. राइट. तो यूनिट्स या क्वांटिटी में कह दो. ठीक है. एंड देन टोटल रेवेन्यू इज गिवन. देन ए आर हमें कैलकुलेट करना है और एम आर. ठीक है. तो ए आर इज प्राइस भी कह सकते हैं उसे हमें ना. उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं. यूनिट सोल्ड कितने हैं क्वांटिटी में 1 to 7. 1 2 3 4 5 6 and 7 and total revenue is 20. Just let me draw the line. Okay, so let's do your 20 था, then 36, then 48, 56, 60, 60 and 56. जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ अगर आप भी उसी तरह सॉल्व करेंगे तो आपको भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. राइट. सो क्वेश्चन नंबर 6 में ये आपको गिवन है और हमें करना है ए आर. तो ए आर का हमें क्या पता था. ए आर का फॉर्मूला था टी आर डिवाइडेड बाई क्वांटिटी. ठीक है. प्राइस नहीं भी दिया तब भी वी नो द प्राइस क्योंकि ए आर को या प्राइस को एक ही चीज है. ठीक है. लेकिन जरूरत हमें नहीं है ये. ओके. नाउ ए आर इज व्हाट. 20 देन 18 48 divided by 3 16 56 divided by 4 14 12 10 and 8. ठीक है. देन मार्जिनल देखो 1 से स्टार्ट हुआ है तो हम एज इट इज इसको टी आर को कॉपी कर लेंगे. 20 देन 36 -20 यू विल गेट 16 देन 48 -36 यू विल गेट 12 एंड सो ऑन. ठीक है. जहाँ पे माइनस में आ रहा है वहाँ पे माइनस भी कर लो. कोई ऐसा नहीं है कि हमें कुछ चेंज करना है. राइट. यहाँ पे 0 है तो 0 कर देंगे. यहाँ पे से 56 -60 ऑब्वियसली बात है माइनस का हो जाएगा फुल. ओके. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. Now we are going to solve the other question. Question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या जल्दी से देख लेते हैं हम. एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ टी आर एंड एम आर. देखो वही सेम है क्वेश्चन. टी आर और एम आर हमें पता करना है. ये थोड़ा सा डिफरेंट है. ए आर इसमें है गिवन. ठीक है. तो वो कैसे करेंगे. लेट्स सी. यूनिट्स गिवन हियर है. ए आर गिवन है. ए आर को या प्राइस को. ठीक है. तो ये क्या है आपका 1 2 3. ए आर कितना है 1099. 1099. हमें फाइंड आउट करना है टी आर. तो टी आर क्या था आपका फॉर्मूला. इट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी. अब हम ए आर को भी प्राइस कह सकते हैं ना. ठीक है. ये चीज दिमाग में रखिएगा. एंड एम आर वी नो पी आर एन माइनस वन. नाउ कैन यू सॉल्व इट. प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन किसके आंसर्स आ गए हैं. पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग इट बाय योरसेल्फ. इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. बस थोड़ा सा कंफ्यूजन जो था वो मैंने आपका क्लियर कर दिया. राइट.
एंड एमआर क्या होता है, जो भी हमारा फर्स्ट यूनिट है तो हमारा एज इट इज हो जाएगा। अगर यहाँ पे सेकंड यूनिट होती तो हम उसको डैश कर देते, ठीक है। ये चीजें मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर AR इज इक्वल्स टू प्राइस इन रेवेन्यू चैप्टर, तो फिर आप इसको चीज याद रखिए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। देखो ये सेम है, टेक इट एज योर फॉर योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। यूनिट्स है आपका 1 to 6, ठीक है। अब आप मुझे ये सॉल्व करके देंगे क्वेश्चन, राइट। AR के हैं या हम प्राइस के हैं, ये मैंने लिख दिया ऑलरेडी। मेन हिंट आपकी यही थी, ठीक है। बस यहीं पे दो जगह पे गलती होती है, एक MR में और एक इसमें। अगर आपको ये चीज पता है देन यू कैन इजिली सॉल्व द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। लाइंस पे मत जाओ, आंसर पे जाओ। आपके पास तो स्केल है, मेरे पास है यहाँ पे, लेकिन आई डोंट यूज दैट, ओके। देन दिस इज 25, 23, 21, 19, 18 एंड 15। अब देखिए आपको पता है, दिस इज फॉर योर होमवर्क। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो ये प्राइस भी हम इसको कह सकते हैं। एंड MR कितना क्या होता है, TRN माइनस 1। आप सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। रिमेंबर, जब यूनिट 1 होती है तो हम पहले में एज इट इज TR जो भी आएगा वो लिखेंगे। अब TR कितना आएगा, देखो ये भी मैंने मेंशन कर दिया, 25, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है जो आप ना कर पाए, राइट। So this is for your homework. Hope you understand it very well. Okay. And tell me in the comment section how you like it. And please do like, share, and subscribe. Thank you for watching.